यही है ना वो जगह जो हम इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, वेयर ऑल द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज ऑफ टाउन आर हियर, बी इट प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, टॉम हॉलैंड, जीजी हदीद, यू नेम इट एंड दे वर हियर। वैसे उन सब ने तो आपको ये जगह सिर्फ बाहर से दिखाई, बट हम कर्ली टेल्स वाले आपको ये जगह अंदर से दिखाएंगे। The Neeta Mukesh Ambani Cultural Center is the newest landmark of Mumbai, and today I am going to take you on a tour. Come here, ma'am. Come here, ma'am. Right profile. Right profile, yeah. Come here. One more. Give us Come one on, more. you guys. The opening of the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center took the internet by storm. It is the first of its kind cultural center that showcases India's finest offerings in music, theatre, fine arts and crafts. The center marks another definitive step in strengthening India's cultural infrastructure and bringing to fruition the best of India and the world in the sphere of arts. To be honest, this truly is a tribute to India's glorious legacy, traditions, and heritage. The Neeta Mukesh Ambani Cultural Center, जिसे NMACC भी कहा जाता है, is the brainchild of, you guessed it right, नीता अंबानी। 6 साल की उम्र से भरतनाट्यम करती आ रही नीता जी का एक ही सपना था, to establish a place that represents India's rich history, culture, heritage and art. Located in Bandra Kurla complex at Geo World Center, this marvelous cultural center includes 3 performing art spaces, an art house and an ongoing exhibition called India in Fashion. यहाँ हर रोज performances और shows होते हैं, and much like cinema halls, the shows, performances and exhibitions here keep changing, giving a chance to known as well as budding talent in the space of art, fashion and culture. So chalo, let me first show you the performing art spaces. Wow, there's nothing like this I have seen before, especially in India. मतलब बिल्कुल Hollywood vibes दे रहा है ये. This is the Grand Theatre and I'm truly enamored by the grandeur of it. It can easily accommodate about 2,000 people, offers 18 diamond boxes, giving you a total VIP experience. And to add to that, अगर आप यहाँ पर आओ, don't forget to check out the LED ceiling. It literally has 8,400 Swarovski crystals, completely customizable, can design graphics and can also add a unique and a multi-dimensional experience. Meticulously designed for immersive experiences, every performance at the Grand Theatre is magical, thanks to a combination of a world-class integrated Dolby Atmos surround sound system and virtual acoustic system. I have to say that this is one of the most technologically advanced theatres in India. बिल्कुल opera वाली feeling देगा ये आपको. It's a price nominally starting at 400 rupees, and for the VIP experience in the diamond box that comes with the private butler, seating space and personal toilet, you may have to pay 15,000 rupees. To be honest, looking at all of this, I can't wait to actually watch a show in the Grand Theatre. But तब मैं shoot और आपके साथ share नहीं कर पाऊंगी ना. Performing on this stage would be any artist's dream. But other than this, there are 2 more performing art spaces. Let me first take you to the Cube. With a movable stage and seating, the 125-seater Cube encourages and promotes emerging Indian artists from new and experimental theatre, spoken word, stand-up comedy and music. There's also a studio theatre, an intimate space for cutting-edge performances, जो काफी technologically advanced है.
So ये है Studio Theatre. It's a 250-seater space which offers telescopic seating system. What does that mean? Well, इसका मतलब ये है कि जो ये आप सारी कुर्सियाँ यहाँ पर देख पा रहे हैं, all of this can be retracted towards the wall और ये बिल्कुल एक open slate बन जाएगा for all the artists to perform in. और यहाँ का जो sound system है as well as the production capabilities are definitely going to make this a preferred venue for all the artists. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है यहाँ का आर्ट हाउस जो स्प्रेड किया गया है ओवर 4 फ्लोर्स 16,000 स्क्वायर फीट और करंटली यहाँ पर एक जो एग्जीबिशन हो रहा है जिसका नाम है संगम कॉन्फ्लुएंस जहाँ 5 इंडियन और 5 इंटरनेशनल आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले कर रहे हैं. इंटरेस्टिंगली दिस होल स्पेस हैज़ बीन डिज़ाइन एज पर द ग्लोबल म्यूजियम स्टैंडर्ड्स और हर 2 या 3 महीनों में यहाँ पर एग्जीबिशन बदले जाएंगे जहाँ नए आर्टिस्ट को मौका मिलेगा टू एग्जिबिट देयर आर्ट. कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ना. I particularly love this one of Krishna and Radha which is by Rakib Shaw and interestingly it's a part of the Ambani collection too. Wow, I particularly love this one. Any guesses ये क्या है? Well, this is a whale's heart. Artist Bharti Kher wanted to imagine कि किस तरह से a heart of a whale would be like and that's when she created this. और इस fiber glass पर बिंदी जो हम सर पर लगाते हैं वो लगाया गया है. अब मैं आई हूँ at one of the most exciting spaces here, which is India in fashion. This is a visual treat for anyone who loves fashion and art. यहाँ आपको दिखेगा the influence of India in the work of global designers और high-end luxury brands such as Chanel, Christian Dior और YSL. ये तीनों ही ब्रांड्स का अपना एक एक सेक्शन है एंड इन एडिशन टू दैट हम सब जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अपनी आइकॉनिक आउटफिट्स में देखते हैं यू आर गोना गेट अ ग्लिम्स ऑफ दिस आइकॉनिक बॉलीवुड आउटफिट्स राइट हियर एट इंडिया इन फैशन. Here you can see the finest work by Indian designers such as Rahul Mishra, Sabyasachi, Manish Malhotra and more. यहाँ की entry is nominally priced at only 199 rupees and you can get access to both India in fashion as well as the art house. Best part, fashion और art students के लिए यहाँ कोई entry fee नहीं है. Wow, do these outfits ring a bell? I'm sure it does. I mean, that outfit was worn by Kajol in Mehndi Laga Ke Rakhna. Kareena Kapoor wearing that outfit in Bolo Chudiya. And how can you forget Priyanka Chopra in her Desi girl attire? Well, you see this outfit worn by Michelle Obama, designed by Naeem Khan? Well, he's recreated the same for the India in Fashion exhibition. Wow, I am enamored by what I'm seeing right now. Well, so this is Isha Ambani's wedding outfit, the only lehenga ever to be made by Valentino. Wow, this has been a very, very interesting journey. I have to say that the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center is an ode to our nation, a commitment to preserve and protect Indian art and culture. So, आप भी यहाँ आइए, take a tour. Remember to wear comfortable shoes because this place is huge. But by the end of it, you're surely going to feel proud of India's rich art and culture. I hope you enjoyed watching this video. Until next time, it's me Kamya Jani signing off. तो था बहुत ही ज़बरदस्त और नीता अंबानी का न्यू कल्चर सेंटर और वो क्या ही ज़बरदस्त और अमेजिंग. ऐसा लाइफ में मैंने तो पहली बार देखा है कि जहाँ पे हर एक चीज़ हो, फैशन हो, आर्ट हो, थिएटर हो, ड्रामा हो और इतने ही यूनिक स्टाइल में. तो वो कौन कर सकता है? वो इंडिया वाले ही कर सकते हैं. और इंडिया का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शायद उनकी वाइफ है या आई डोंट नो कि वो कौन है, लेकिन उनसे ही जुड़ा हुआ एक नाम है.
उनका बनाया हुआ ये कल्चरल सेंटर, क्या बात है, जबरदस्त, अमेजिंग। और हर एक चीज पे बेहतरीन वर्क किया गया है और हर एक चीज को एक बहुत ही जबरदस्त, मेरे ख्याल में ये इंडिया का भी सबसे बेस्ट जो है वो कल्चरल सेंटर बनेगा एक टाइम पे। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है क्या है कि लोग यहाँ पे अपना वर्क आर्ट और वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और लोग वहाँ से नई नई चीजें और चीजें दरियाफ्त करेंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि स्टूडेंट के लिए वहाँ पे जो फैशन और आर्ट से ताल्लुक रखने वाले हैं उनके लिए कोई वहाँ पे फीस नहीं है, वो उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और इंडिया क्योंकि अपने लोगों को सिखा रहा है, बढ़ा रहा है, आगे चला रहा है, तो ये सब चीजें उनके लिए बहुत ही जबरदस्त हैं और अमेजिंग। यार मजा आ गया देख कि पता नहीं यार क्या चीज बना दी है, कसम से ना देख कर एक ना हैरान रह गए हम कि भाई कि क्या चीज है। आप देखिए कि इतना प्यारा यार एक बना हुआ है कि उसके अंदर हर चीज भाई रख दी गई, हर चीज। और पेंटिंग्स स्पेशली जो भाई कृष्णा जी वाली है ना वो बहुत पसंद आई है भाई, बहुत ज्यादा। लेकिन ये कि बाकी भी पेंटिंग्स भाई काम नहीं होती, ये तो बहुत महंगी होती हैं भाई। सुहेल बता रहा था बहुत कीमत काफी होती है, अरबों में होती है। ये हम तो नॉर्मल बंदे को यही लगता है कि ये क्या चीज है बस, लेकिन ये जो एक देखने वाले होते हैं उनको ये चीज समझ लगती है। पेंटिंग वगैरह तो काफी महंगी होती है, लेकिन भाई कल्चर, ये कल्चर सेंटर था और काफी चीजें इसमें भाई उन्होंने ऐड की हुई है और काफी एक मतलब के उधर शो भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात के इंडिया में है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको एक मतलब कि ये मिडल ईस्ट, दुबई हो गया या एक मतलब कि कतर हो गया, इस साइड पर मिलेगी ऐसी बनी हुई चीजें, लेकिन इंडिया में फर्स्ट टाइम देखी है भाई और काफी खुशी हो रही है देखकर। नहीं बिल्कुल, जिस तरह आप देखो ना इंटरनेशनल लेवल के लोग जो है ना वो यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, तो फिर आपको जो है ना वो अपना एक रिच कल्चर या एक जो कल्चर है इंडिया का वो दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका है। और हम जो है ना जो हम शुरू से ही देखते हैं कि इंडिया साइड के ऊपर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पीएम मोदी जी हैं या बाकी जो है ना वो सब प्रीफर जो है ना अपने कल्चर को करते हैं, जो ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट पर किया। नो डाउट यार, बहुत जैसा एक्सपेक्ट किया था ना गाइस उससे ज्यादा खूबसूरत है और लग्जरी वाइब्स बिल्कुल आ रही हैं। और अंबानीज हैं तो लग्जरी वाइब कैसे ना आती। तो तैमूर साहब आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मुझे यार सबसे जो बेस्ट लगा है ना वो उनका ग्रैंड थिएटर लगा है और उसकी जो सीलिंग है ना भाई नेक्स्ट लेवल। नो डाउट, नो डाउट। और जो सीलिंग में उन्होंने स्वरोस्की क्रिस्टल्स का यूज किया है, मैं कहता हूँ भाई एंड कर दी। दूसरा मुझे ये वाला जो ग्रैंड थिएटर है ये तो मुझे अच्छा लगा ही है। दूसरा मुझे एक और ज़्यादा अच्छी फैसिनेट किया जिस चीज़ ने वो ये कि ड्रेसेस जो हैं काजोल के, प्रियंका चोपड़ा के और करीना कपूर का था आई थिंक, तो वो उन्होंने फैशन सेक्शन में वैसे के वैसे अभी तक संभाल के रखे हुए थे और स्टोर करके उन्होंने मैनीक्वीन पे लगाए हैं, बिल्कुल लोगों को दिखाने के लिए कि यार ये वही आउटफिट्स हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये कि ग्रैंड थिएटर की जो टिकट है वो 15,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ है, जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 40 to 50,000 बनती है। हाँ जी, इंडियन 15,000 रुपीज़ और पाकिस्तानी 40 to 50,000 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के हिसाब से। और मेरे ख्याल से इंडियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ये पैसे हैं वीआईपी टिकट के, ग्रैंड थिएटर के। तो लेकिन जिसने जाना है वो तो देखने जाएगा। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, बहुत ही मजे की वीडियो थी। मतलब बाहर से मुझे इतना नहीं लग रहा था कि इसके अंदर इतना कुछ होगा, इतनी खूबसूरत। मुझे जस्ट ये था कि बिल्डिंग होगी बहुत खूबसूरत, डिफरेंट तरह की कुछ यहाँ पर चीजें होंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पूरी मतलब इंडिया का आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू डिफरेंट चीजों के। और सबसे जो मुझे मजे की चीज लगी ना वो जो थिएटर टाइप था जिसकी सीलिंग थी, वो मुझे बहुत ही मजे की लगी। जो उन्होंने कहा था ग्लास टाइप का, शायद उन्होंने कहा था हाँ कुछ उसका वर्क हुआ है, तो वो मुझे सीलिंग बहुत हटके और डिफरेंट लगी। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी है तो ये वर्क नहीं होगा। हाँ, दूसरी टाइप की सीलिंग देखी है, लेकिन ऐसी वाली नहीं देखी। क्रिस्टल की थी, क्रिस्टल की थी, तो वो हमने फर्स्ट टाइम देखी है। और उसमें काफी सारे मतलब ये जो पेंटिंग वाला सेक्शन अलग था, थिएटर वाला सेक्शन अलग था और ये जो ड्रेसेस वाला सेक्शन अलग था। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन थे। और मतलब जैसे वो लास्ट में उन्होंने कहा कि जो है कि इंडिया के जो कल्चर है उसको इन्होंने सेव किया और वाकई सेव किया। अगर हम बात करें वो जो काजोल का मेहंदी लगा के रखना, कितना पुराना मतलब वो मूवी है और उसका गाने में जो उन्होंने वो ड्रेस पहना हुआ था,
तो वो भी अभी तक है। और बोले चूड़ियां, और जैसे वो प्रियंका का था देसी गर्ल, तो ऐसे जो मतलब फेमस सॉन्ग जो मशहूर हुए थे उनके उन्होंने वो ड्रेसेस आउटफिट रखे। और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी बेटी का जो वेडिंग ड्रेस था उसको भी इस पे मतलब उन्होंने डिजाइनर्स 3 ऐसे चूज किए ना जो माने हुए डिजाइनर्स है, जिनके जो ड्रेसेस हैं वो उसमें मूवीज में भी चलते हैं, और वैसे भी जो टॉप के डिजाइनर्स हैं वो जो बराक ओबामा है उसकी मिसेज ने भी पहना हुआ था। हाँ, उनका मतलब वो रिक्रिएट किया फॉरेन कंट्रीज में भी मतलब उसी डिजाइनर का उन्होंने पहना था, लेकिन रिक्रिएट करके उन्होंने इसमें लगाया हुआ था। सबसे पहले तो हम चलेंगे फीमेल की तरफ ही और इन्हीं से पूछेंगे। हाँ जी बताएं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। मैं तो मैं तो बैठे बैठे अपने माइंड में सोच भी लिया। आपको कौन सा सूट पसंद है वो बताइए। सोचा गया वो बताओ। मैंने कहा मैं तो बैठे बैठे अपने ज़हन में सोच के आपने मेरे नाम का एक बनवाना है, ASCC अमरीन सजाद कल्चरल कॉम्प्लेक्स। वो मुकेश अंबानी की बेगम है। और आप देखें कि यार जितना पैसा है उनके पास और उन्होंने उसका अपने शौक कैसे पूरे। अच्छा एक है ना, आपको शौक होता है किसी चीज का, और उन्होंने ये मनी अर्निंग के लिए तो नहीं है भाई, बिल्कुल आपने पैसा कमाने के लिए तो नहीं बनाया। मैंने साथ बताया मतलब कि एक 6 शौक साल भी होता है की बिल्कुल कल्चरल का शौक था इतना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि आपको इधर से मतलब सोच रहे होंगे कि आप सोचते होंगे तो पैसा हर टाइम अकाउंट में ऐसे वो जैसे हम फ्यूल डलवाते हैं ना गाड़ी में, तो वो मीटर चल रहा होता है, तो ऐसे इनका अकाउंट हर सेकंड में इनके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे। इतना पैसा है मतलब इनको हर टाइम इतना बिजनेस है, शौक पूरे और दूसरे अपने बिल्कुल। तो बाकी जी डिजाइन बिल्डिंग का इंटीरियर एक्सटीरियर जबरदस्त बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने इंस्टाग्राम पे सारा देखा हुआ है,